Okay, the third requirement uh, for the gene cloning or recombinant DNA technology is the molecular carriers, or they are called vectors. Molecular carriers or genetic vectors. So, what are vectors? Vectors are the carriers for the gene of interest to the host cells. So, vectors are the carriers for the gene of interest. They carry the gene of interest into the host cells where the gene of interest are inserted. I will tell you the whole process later on, but first, the definition of the vectors. Vectors are the DNA molecules which carry the gene of interest into the host cells. So, therefore, they are the carriers for the gene of interest into the host cells. Or we can say they are the vehicles for the gene of interest. They are the vehicles or the carriers for the gene of interest. They carry the gene of interest into the host cells and insert them into the host cells. There are different types of vectors used by the uh, genetic engineer or molecular biologist. But the most common types of vectors are plasmids. Plasmids are the most common types, and you know plasmids are obtained from bacteria. They are naturally present in bacteria, so initially they are obtained and then they are modified according to their needs and requirements. So plasmids, the next one, the phage DNA, the phage DNA. Then there are another one which are known as cosmids, which is a combination of cosmid is a combination of plasmid and phage DNA. Phage DNA. Then there are some plasmids which are obtained from yeast. So yeast plasmids, or in some cases there are yeast artificial chromosomes. Yeast artificial chromosomes. They are known as YAC, yeast artificial chromosome. So there are different types of plasmids. There are different types of vectors. They are plasmids which are obtained from bacteria. The phage DNA could be used as plasmid, and I hope you remember your first year जहाँ पे हम बैक्टीरियोफेजिस को पढ़ रहे थे, तो हमने उसको पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेजिस की जो डीएनए है उसको हम एज वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर एक टॉपिक था रोल ऑफ फेजेस और वायरसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और वही चीज़ फिर आप लोगों ने ट्रांसडक्शन में भी पढ़ी थी. Cosmid is a term which is they are artificially synthesized plasmids, and they are synthesized by the combination of plasmid, the bacterial DNA, and phage DNA. Yeast plasmids, they are naturally present, and some are the yeast artificial chromosome. But the most common types of plasmid, as I have told you already, they are the most common types of vectors are plasmids. So plasmids are are small circular DNA obtained from bacteria. Okay, and this is also known as extra chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA means the DNA of bacteria
other than its chromosomal DNA, other than its chromosome. So therefore that is known as what? Chromosomal DNA. Okay. So there are some properties of plasmids. There are some properties or characteristics of plasmids. Properties are characteristics of plasmids. Okay, properties are characteristics of plasmids. So what are the properties or characteristics of plasmid? So the plasmid, should have origin of replication. Origin of replication. जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ वो डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करेगा जिस पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ सीक्वेंसेस होती हैं जिसको रिकॉग्नाइज करती हैं, वो गायरेजेस और टोपोआइसोमरेजेस, इफ़ यू रिमेंबर. सो अगर हमारे पास एक प्लाज्मिड है, लेट्स से दिस इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये दिस इज़ अ प्लाज्मिड. तो इस प्लाज्मिड पर एक ख़ास जगह पर देयर कुड बी सर्टन सीक्वेंसेस एंड दैट सीक्वेंस इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सर्टन डीएनए मॉलिक्यूल. उसको क्या करेगा, तो वो गायरेजेस और टोपोआइसोमरेजेस आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएंगी. तो ये जगह जो है ये कहलाएगा क्या? origin of replication. You remember the origin of replication, ORI. तो अगर किसी प्लाज्मिड पर ये ORI नहीं होगा तो वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं होगा. अगर वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं होगा so that wouldn't work as a कैरियर. बिकॉज अगर ये प्लाज्मिड हम किसी बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करते हैं तो इस प्लाज्मिड ने वहाँ पर जाकर रेप्लिकेट होना है और उसके अंदर जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है. अगर उस पर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ये प्लाज्मिड जब बैक्टीरियल सेल के अंदर आएगा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं होगा, उसकी कॉपीज़ नहीं बनेगी और फिर उस पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इंसर्ट करते हैं, ऑलरेडी अगर हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो उस काम का की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सो किसी भी प्लाज्मिड पर ये लाजमी है कि उसके पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. अगर नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसका नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा. तो इस वजह से उस पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट पर मल्टीप्लाई नहीं होगा. सो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ऑफ नो वैल्यू. ठीक, दिस इज़ वन थिंग. The second important characteristic is the selectable marker. Selectable marker. What is that? Is a second characteristic. Selectable marker is a gene on the plasmid which will differentiate the transformed bacteria from the untransformed. That is known as what? Selectable marker. And this selectable marker genes are usually antibiotic resistant gene. For example, ampicillin resistant gene, tetracycline
tetracycline resistant gene, क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन, इसको इस तरह लिखते हैं एम्पिसिलिन, कैपिटल आर उसके ऊपर, टेट्रासाइक्लिन आर इसके ऊपर लिखते हैं, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन, और दैट कुड बी और certain antibiotic, certain gene responsible for metabolism of certain substance, for example lactose metabolism gene. Okay, so that is, so selectable marker. What is selectable marker? Selectable marker is a gene which is present on the plasmid, and that will differentiate the type of bacteria that will differentiate the transformed bacteria from the untransformed. Here I will give you an example. This is a plasmid. I hope you can see. This is a plasmid, and this plasmid has a gene here, and that gene is, for example, here is a gene on this plasmid, and that gene is ampicillin resistant gene. This is a plasmid. I hope you can see. This is a plasmid, and the plasmid has got a gene, and that gene is known as ampicillin resistant gene. Okay, there are, and now we expose, these are the bacterial cells. These are the bacterial cells. All are bacterial cells. Bacterial cells. We expose these bacteria into the plasmids. These are the bacteria, and the plasmids are here. Okay, the green color, these are the bacterial cells, and they are the plasmids. So we now expose the bacterial cells into the plasmids. So there is a chance that the plasmids may enter into the bacterial cells. There is a chance factor. The plasmids may enter into the bacterial cells. Now there is, if I say there is a chance, so the plasmid is entering into this bacterial cell and this bacterial cell, but not into this bacterial cell. And when the plasmids are entering into the bacterial cells, the plasmids have a gene of interest. Okay, you can see here the red color are the plasmids, the green color, the big one, they are the bacterial cells. We expose the bacterial cell to the plasmids, so there is a chance that the plasmids may enter into the bacterial cells. A chance factor. So they may enter into certain bacterial cells and may not enter into other type of cells. Now we grow these bacteria in a medium, and that medium, for example, we put ampicillin. What is ampicillin? Ampicillin is an antibiotic. Okay, this is a medium, and the medium contain, this is a medium, and the medium contain ampicillin other than दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसमें एम्पिसिलिन भी प्रेजेंट है. अब जो बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो बैक्टीरिया यहाँ पर सरवाइव करेंगे, और जिन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई वो बैक्टीरिया यहाँ पर सरवाइव नहीं करेंगे. तो अब ज़रा अंडरस्टैंड करें कि इस जीन की मदद से, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है,
जीन है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये क्या करता है, ये इस एम्पेसिलिन के ख़िलाफ़ एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जब ये एम्पेसिलिन इधर होगा, ये एम्पेसिलिन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आए, तो ये जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसके ख़िलाफ़ क्या करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, एम्पेसिलिन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी to destroy ampicillin because of the presence of this gene and enzyme, और ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं करेंगे। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यू नो वी कैन आइडेंटिफाई कि इन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और इन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो इस वजह से ये जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेलेक्टेबल मार्कर जीन। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड और अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस जीन की मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उन बैक्टीरिया को जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सो दिस इज़ द सेकंड characteristic of the plasmid। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर हो, तीसरा जो है इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS कहलाता है, या इसको क्या कहते हैं, पॉली लिंकर भी कहते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट और पॉली लिंकर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट वो जगह है जहाँ पर इसकी दो, मल्टीपल क्लोनिंग साइट इज अ साइट वेयर the gene of interest is inserted, okay, where the gene of interest is inserted, okay। So how MCS can be opened with the help of endonucleases, और यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट फॉर many endonucleases यहाँ पर। अब इसको अंडरस्टैंड करें डायग्रामेटिकली कि ये हमारे पास this is a plasmid, again this is a small circular DNA molecule plasmid। तो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड पर इधर देखें, ये हमारे पास एक जगह है जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ। इस जगह को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, दिस इज़ नोन एज MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, या ये कहलाता है क्या, पॉलीलिंकर कहलाएगा। अब यहाँ पर इस जगह पर there is a opening site, there is a, let's say this is a recognition site for ECO R1, this is a recognition site for BAM H1, there is a recognition site for KPN1, there is a recognition site for SMA1, there is a recognition site for other enzyme, okay, and so many KPN, P, ALU1, PV, so there is ये जो हमारे पास ये जगह है, ये जो एक ख़ास जगह है इस प्लाज्मिड पर, तो यहाँ पर बहुत से एंजाइम्स के लिए क्या है, रिकॉग्निशन साइट, दिस इज़ द रिकॉग्निशन साइट, देन देयर इज़, समझ लें कि दिस इज़ अबाउट 200-300 बेस पेयर एक जगह है ये सारा, और इस जगह पर देयर आर रिकॉग्निशन साइट्स
for many रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसकी एक सिग्निफिकेंस है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर EcoR1 इस्तेमाल करें तो EcoR1 यहाँ पर कट लगा सकता है। अगर BAM-H1 इस्तेमाल करें तो यहाँ पर कट लगाएगा। SMA1 इस्तेमाल करें तो इधर कट लगाएगा। अब आपने इधर देखें, इस एक ट्यूब लिया है, ये ट्यूब, इस ट्यूब में आपने ये प्लाज्मिड्स डाले हैं और इस प्लाज्मिड के साथ आप लोगों ने फॉर एग्जांपल EcoR1 डाला है। तो EcoR1 क्या करेगा, इस सारे प्लाज्मिड में एक जगह पर कट लगाएगा। एक और ट्यूब है, उसमें आपने ये प्लाज्मिड डाला है और उस प्लाज्मिड के साथ आप लोगों ने KPN1 इस्तेमाल किया है, तो KPN1 इसमें एक कट लगाएगा। एक और ट्यूब लिया है, उसमें आपने ये प्लाज्मिड और उस प्लाज्मिड के साथ आप लोगों ने SMA1 यहाँ पे डाला है, क्या SMA1 डाला है, तो SMA1 यहाँ पर कट लगाएगा। अब ये सारे अगर इसमें से कोई भी कट लगाए तो ये प्लाज्मिड जो है उसके बाद क्या हो जाएगा, द प्लाज्मिड विल बी ओपन लाइक दिस। ये प्लाज्मिड पहले इस तरह सर्कुलर प्लाज्मिड था, तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये प्लाज्मिड जो है ओपन हो चुका है। इधर देखें एग्जैक्टली, इफ दिस इज अ प्लाज्मिड, लुक एट माय फिंगर्स, इफ दिस इज अ प्लाज्मिड, अगर ये ओपन हो जाए तो ये इस तरीके से अगर यहाँ पर एंजाइम ने कट लगाया है, फॉर एग्जांपल द मार्कर इज एंजाइम SMA1, तो उसने कट लगाया, अब ये प्लाज्मिड जो है ओपन हो गया है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और ये कहलाता है क्या, पॉलीलिंकर कहलाता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट और पॉलीलिंकर। नाउ जब ये ओपन हो जाए तो आपने ऑलरेडी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑब्टेन किया है एंड यू कैन इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट हेयर। तो आप लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट किया है। देयरफॉर दिस इज नोन एज पॉलीलिंकर और मल्टीपल क्लोनिंग साइट। So that can be open with the help of multiple enzymes, multiple endonuclease enzymes that can be open, and then the gene of interest that can be open, and then the gene of interest, let's say this is the gene of interest that can be inserted here. Okay, this is known as what? तो प्लाज्मिड की एक तीसरी खुसूसियत जो है वो क्या है कि इसको पॉलीलिंकर या मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। Now there are certain other properties which are equally important, and those properties of the plasmid are कि plasmid should be smaller in size. Plasmid should be smaller in size. जब ये प्लाज्मिड का साइज स्मॉल होगा तो ये एक बड़े जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकेगा, और जब कैरी कर सकेगा तो इसकी कैरियंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक और उसकी प्रॉपर्टी है, कैरियंग कैपेसिटी। इधर देखें, एक आसान सी चीज़, ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, इधर देखें ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ये now there is another plasmid, now this is another plasmid, and this is still another plasmid। ये सारे हमारे पास क्या है, these are the plasmids, and this is the bacterial cells, this is the bacterial cell, okay, bacterial cell, and these are the plasmid। ये सारे क्या हैं, plasmids हैं। अब क्या ख्याल है इनमें से कौन सा प्लाज्मिड, लेट्स से मैं उसको ABCD नंबरिंग देता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सा प्लाज्मिड आसानी से इस सेल के अंदर आ सकता है? तो ये तो एब्जॉर्प्शन करता है बेसिकली, ये जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड्स आते हैं, बेसिकली दे इंटर विद द हेल्प एब्जॉर्प्शन, जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो पोर्स है उनके ज़रिए अंदर आएगा। तो जिसका साइज़ कम होगा, जिस प्लाज्मिड का जिस प्लाज्मिड का साइज़ कम होगा वो आसानी से अंदर आएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो आसानी से अंदर नहीं आएगा। तो अगर प्लाज्मिड स्मॉलर इन साइज़ हो तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। सो द प्लाज्मिड which is smaller in size can easily enter into the bacterial cell as compared to the plasmid which are large in its size। अब अगर हमारे पास ये प्लाज्मिड है और इस पर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक, तो ये
इधर देखें, ये एक बड़े जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अगर हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 KB है, दूसरा है 2 KB है, तीसरा है 3 KB है, ठीक है। तो हम अगर 1 KB इस पर करें अंदर आ सकता है, अगर 3 KB करें तब भी आ सकता है, अगर हम इस पर 1 KB करें तो शायद आ सकेगा, लेकिन अगर हम 3 KB करें तो फिर उसका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा और फिर अंदर नहीं आएगा। तो इस वजह से जो प्लाज्मेट स्मॉलर इन साइज़ होगा उसकी कैपेसिटी टू इंटर इनटू द सेल्स वो ज़्यादा होगी, जो स्मॉलर इन साइज़ होगा वो एक लार्ज DNA मालिक्यूल को कैरी कर सकता है और अंदर आ सकता है। तो दीज आर सर्टन प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उसको हम कहते हैं कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मेट। ओके, कॉपी नंबर, दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मेट। वो कॉपी नंबर क्या है कि एक प्लाज्मेट जो है वो कितने टाइम रेप्लिकेट, दिस इज द रेप्लिकेशन कैपेसिटी, द रेप्लिकेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मेट, कि एक प्लाज्मेट जब बैक्टीरियल सेल के अंदर आए तो वो एक प्लाज्मेट है वो 10 कॉपीज बना सकता है। ये प्लाज्मेट जब अंदर आएगा तो ये प्लाज्मेट एक है यहाँ पर, वो 10 कॉपीज़ बना सकता है। तो इस पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी 10 कॉपीज़ बनेगी। एक और प्लाज्मेट है जब वो अंदर आएगा तो वो 20 कॉपीज़ बना सकता है, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी 20 कॉपीज़ बनेगी। तो इस वजह से जो प्लाज्मेट जितनी ज़्यादा कॉपीज़ बना सकता है, जितनी ज़्यादा दफ़ा रेप्लिकेट होगा, उसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की उतनी ज़्यादा कॉपीज़ बनेगी एंड दैट वुड बी मोर वर्केबल, मोर यूज़फुल प्लाज्मेट। ओके, तो मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ कि प्लाज्मेट्स हैं क्या चीज़ें और क्या काम करती हैं। सो प्लाज्मेट्स आर they are the vectors which they are the vectors, the most common types of vectors. Plasmids are the most common types of vectors. There are certain properties, तो उस पर origin of replication होनी चाहिए, selectable marker जीन्स होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन या सिर्फ सेलेक्टेबल मार्कर उसको हम कहते हैं। ये जीन होते हैं प्लाज्मेट्स पर जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्म्ड और अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन है उसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, या कोई ये मेटाबोलाइट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल मैंने आपको दिया कि दीज आर द प्लाज्मेट जिस पर ये मुख्तलिफ किस्म के जीन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि दिस इज़ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो इस प्लाज्मेट पर है। हम इस प्लाज्मेट के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन काज करते हैं, तो जिन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर सर्वाइव करेंगे, तो हम कहेंगे कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर सर्वाइव नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि उसमें ये प्लाज्मेट जो है उसमें अंदर नहीं आया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। प्लाज्मेट को स्मॉलर इन साइज़ होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्लाज्मेट जो है वो स्मॉलर इन साइज़ हों तो आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन काज करेंगे, और जब स्मॉलर इन साइज़ होंगे तो एक लार्जर जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकेंगे, ठीक। तो इस वजह से प्लाज्मेट की स्मॉलर इन साइज़, कैरिंग कैपेसिटी ये भी मैटर करते हैं। और लास्ट चीज़ प्लाज्मेट की हम उस कॉपी नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कितनी दफ़ा वो रेप्लिकेट कर सकता है। ओके, थैंक यू।